Students, I teach chapter 1 in economics, the name development. Development has many aspects. The purpose of the chapter is to enable students to understand this idea. They have to understand that people have different perspective and development, and there are ways by which we can arrive at the common indicator for development. बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का पहला अध्याय विकास पढ़ेंगे। विकास के कई पहलू हैं। इस अध्याय का उद्देश्य विद्यार्थी को यही विचार समझाना है। उनके लिए ये समझना आवश्यक है कि लोगों के विकास के बारे में अलग अलग धारणाएं और ऐसे उपाय हैं जिनके द्वारा हम विकास के सामूहिक सुचालक को जान सकते हैं। How can countries to state be compared using some selected development indicators is another. Questions that the student will read about in this chapter. Economics development can be measured and the income is the most common method for measuring development. However, the income method, though useful, has several weaknesses. Hence, we need never ways of looking at the development using indicators of quality of life and environmental. दूसरा प्रश्न ये है कि देश और राज्य की तुलना कुछ चयनित विकास सूचकों के आधार पर कैसे की जा सकती है। इस अभ्यास से विद्यार्थी इसका अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास को मापा जा सकता है और आय इसे मापने की एक विधि है। यद्यपि आय के द्वारा विकास मापने की विधि उपयोगी है, इसके कुछ दोष भी हैं। इसलिए हमें जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण की धारणता जैसे नए सूचक का प्रयोग करने की आवश्यकता है। In modern age, everyone desires to have a house to live, food to eat, clothes to wear, and facilities like the educations and the health for their children. But all this is possible only when they get employment so that they can earn enough and thus can be fulfill their needs. This process is known as the economic development in economics. बच्चों, आधुनिक युग में सभी व्यक्ति चाहते कि उन्हें रहने के लिए मकान, खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े तथा बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हो। किंतु ये तभी संभव है जब वस्तुओं का उत्पादन हो और उन्हें रोजगार मिले, जिससे कि पर्याप्त आय प्राप्त हो और इसकी आवश्यकता पूरी हो। अर्थव्यवस्था में इसी प्रक्रिया को आर्थिक विकास की संज्ञा दी जाती है। इन द एशियन टाइम, इंडिया वॉज नोन एज द गोल्डन स्पैरो. It means that at that time, India was the prosperous and developed country. Here, the economy was mainly based on simple living, hard work, and mutual brotherhood. प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसका अर्थ यह है कि उस समय भारत एक संपन्न और विकसित देश था और उसने अर्थव्यवस्था सुदृढ़ थी। सादा जीवन, कठोर मेहनत और परस्पर भाईचारा आदि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। इन एशियन टाइम, स्पेशल प्लेस वॉज गिवन टू मटेरियलिस्ट prosperity under the economics development at the global level. The material can thinker of Germany and France considered gold and silver as the base of development. The concept of development kept on the changing with time. प्राचीन काल में वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास के अंतर्गत भौतिक संपन्नता को विशेष स्थान प्राप्त था। जर्मनी और फ्रांस के वणिकवादी विचारक सोने और चांदी की प्राप्ति को विकास का आधार मानते थे। समय के साथ साथ विकास की अवधारणा भी बदलती रही। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस whereby an economy real national income increase over the long period of time. आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय
में वृद्धि होती है। आर्थिक विकास को सरलता से समझने के लिए उसके कुछ लक्षणों की जानकारी भी आवश्यक है। The knowledge of characteristics of economics development is necessary to understand the economics development easily. The main characters of development are as below. First is continuous process, second is increase in national income and per capita income. Third, a long period process. Fourth, proper utilizations of resources. Fifth, improvement in standard of living and social welfare. बच्चों, आज हम इसके कुछ जानकारी लक्षणों की लेंगे। सतत प्रक्रिया पहला पॉइंट। दूसरा, राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तीसरा, दीर्घकालीन प्रक्रिया। चौथा, संसाधनों के समुचित विद्रोहन। पांचवा, जीवन स्तर एवं समाज कल्याण में उन्नति। ये इसके लक्षण हैं। अब हम आगे देखेंगे कि नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इन नेशनल इनकम। National income is the income of a country. It is obtained by the adding the monetary values of the commodities and services produced in country in a year. Define national income: the labor and capital of the country acting on the natural resources, material and non-material, including services of all kinds of produce annually a certain need aggregate of commodities. This is the real net annual income of revenue of country or the national divided. बच्चों, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम जानेंगे। किसी भी देश राष्ट्र की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। इस देश में एक वर्ष में उत्पादन वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को जोड़कर ज्ञात किया जा सकता है। इस देश का श्रम व पूंजी उसकी प्राकृतिक संसाधनों पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के शुद्ध योग, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं सम्मिलित होती है, उसका उत्पादन करते हैं। यही देश की वास्तविक शुद्ध आय व राष्ट्रीय लाभांश कहलाता है। इसमें अपन फॉलोइंग फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम आर इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट, द नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू ऑल द क्वालिटी or quantity of the goods and services produced in the particular period in one year. Second, market prices of all kinds of goods and services are included in national income, in which price of one commodity is counted only once. Number third, income from foreign countries is added to it, and income earned by the foreigners फ्रॉम द कंट्री इज डिडक्टेड फ्रॉम इट। बच्चों, राष्ट्रीय आय के संबंध में हम लिखित बातों को महत्वपूर्ण से देखेंगे। राष्ट्रीय आय का संबंध किसी अवधि विशेष या एक वर्ष, भारत में इसको 1 अप्रैल से 31 मार्च में मानते हैं, कि उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा से है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय आय में सभी प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं और बाजारों की कीमतें सम्मिलित की जाती है। इसमें प्रमुख वस्तुएं कीमत को एक बार गिना जाता है। तीसरा, इसमें विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ा जाता है और विदेशियों द्वारा देश में प्राप्त आय को घटाया जाता है। द पर कैपिटा इनकम, when the national income of the country is divided by its total populations, then what we get it is per capita income. The following formula is used to calculate the per capita income of country. Per capita income is equal to national income and total populations of the country. Per capita income gives us an idea of standard of living of the people of that country. If the per capita income is increasing in the country, it means that the lives of the people of that country are becoming happier. It means their standard of living is improving. बच्चों, प्रति व्यक्ति आय किसी देश की राष्ट्रीय आय उसकी कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है, तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसे ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं,
जैसे प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय हम उस देश के निवासियों के जीवन स्तर की जानकारी प्रदान करती है। यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति आय की बढ़ोतरी हो रही है तो इसका तात्पर्य कि उस देश के निवासियों के जीवन स्तर में वृद्धि हो रही, अर्थात उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। बच्चों, इसके लिए हम देखेंगे द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट of progresses has always been with us. We have aspirations or the desired about what we would like to do and how would we like to live. Similarly, we have ideas about what a country should be like. What are the external things that we required? Can life is better for all? How should the people live together? Can there are more equality? Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work toward achieving these goals. This is a complex task, and in the chapter we shall make a beginning at understanding development. बच्चों, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाओं और इच्छाओं को हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास के इन सभी प्रश्नों का विचार करने, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। ये काम जटिल है और इस अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो हमारा प्रभावित, हम उससे जीने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन से प्राप्त कर दे सीकिंग थिंग्स दैट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम दैट विच वी कैन फुलफिल देयर aspirations and desired. In fact, at times, two persons or group of persons may seek things which are the conflicting. A girl accept as the much freedom and opportunity as her brother, and that he also share in the household work. Her brother may not dislike this. Similarly, to get may not like this. Similarly, to get more electricity, industrials may want more dams, but they may be submerge the land and the disrupts the lives of people who are the displaced, such as the tribals. They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigations their land. बच्चों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थात वे चीज़ें जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा कर सके। वास्तव में कई बार दो व्यक्ति या दो गुट ऐसी चीज़ें चाह सकते हैं जिनसे परस्पर विरोध हो सकता है। एक लड़की अपने भाई के समकक्ष आज़ादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा की आशा रखती है। हो सकता है कि भाई को ये पसंद न हो। इसी तरह अधिक बिजली पाने के लिए उद्योगपति ज़्यादा बांध चाहते हैं, लेकिन इससे ज़मीन जलमग्न हो सकती है और उन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है जो बेघर हो जाए, जैसे कि आदिवासी। वे इसका विरोध कर सकते हैं और हो सकता है कि वे अपने खेतों की सिंचाई के लिए केवल छोटे चेक बांध या तालाब पसंद करें। सो टू थिंग्स आर quite clear. One, different persons can have different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. लोगों के विकास के लक्ष्य को हम भिन्न कर देखें तो दो अलग अलग बातें साफ नज़र आती हैं, एक दूसरे से अलग होती है। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। नाउ वी एक्सप्लेन इनकम एंड अदर गोल्स।
If you go, you will notice one common things. What the people desired are regular work, better wages, and decent price for their crops. On other produce, this is the produce. In other word, they want more income. बच्चों, आय और अन्य लक्ष्य को देखेंगे। अगर आप एक बार फिर ऐसा देखें कि किसी भी तरह से ज़्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता और सुरक्षा के आदर मिलने की इच्छा भी रखते हैं, वे भेदभाव से अप्रसन्न होते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं पर्याप्त नहीं होती है। Besides seeking more income, more way to other people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of other. They resent discriminations. All these are important goals. In fact, in same cases, this may be more important than more income or more consumptions, because material goals are not all that you need to live. द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। मनी और मटेरियल्स थिंग दैट वन कैन बाय विथ इट वंस फैक्टर ऑन विच अदर लाइफ डिपेंड। बच्चों, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर निर्भर करता है। अगर आप यह बात स्पष्ट नहीं लगती तो अपने जीवन में अपने मित्रों की भूमिका के बारे में जरा सोचिए। बट दे मीन अ लॉट ऑफ योर लाइफ, दीज आर ऑफन इग्नोर। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिससे मापा नहीं जा सकता वह महत्वपूर्ण नहीं रखता। हाउएवर, इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड दैट what can be measured is not important. Now consider another example. You have get a job in a far off the place. Before accepting it, you would be try to consider many factors apart from income, such as the facilities for your family, working atmosphere, or opportunity to learn. In another case, a job may give you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leave no time for your family. This will be reduce your sense of security and freedom. बच्चों, हम एक उदाहरण लेंगे। अगर आपको कहीं दूर दराज के इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने के पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे, जैसे कि आपके परिवार के लिए क्या सुविधा उपलब्ध होगी, काम करने का वातावरण कैसा होगा, या सीखने के लिए क्या अवसर है। दूसरी नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन वह नियमित रोजगार हो सकता है जो आपको सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। Similarly, for development, people look at the mixed goal. It is true that women are engaged in the paid work, their dignity in the household and the society increase. However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and the greater acceptations of women working outside. इसी तरह विकास के लिए लोग मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। यह भी सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती है तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज में ज़्यादा हाथ बटाया जाएगा और घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकारा जाएगा। सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां और व्यापार भी कर सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में भी होता है। Hence, the developmental goal that people have are not only about better income, but also about other important things in life. Now, national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals,
then there are the notion of national development is also likely to be different. राष्ट्रीय विकास, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न है तो उनके राष्ट्रीय विकास के बारे में भी धारणा भिन्न होगी. मोस्ट लकीली you would be find that different students like in the class have given different answers to the above questions. In fact, you might yourself think of many different answers and not to be sure any of this. It is a very important to keep in mind that different person could have different as well as conflicting notion of country developing. संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्न के उत्तर अलग अलग उत्तर दिए होंगे. हो सकता है आपको स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो. ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न और परस्पर विरोधी हो सकती है. However, can all the ideas be considered equally important? लेकिन क्यों सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है? नाउ वी सी द फॉलोइंग सिचुएशन इन द पिक्चर. अ वेसल डंप 500 tons of liquid toxic waste into the open air dump in a city and in the surrounding sea. This happened in the city called Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. The fumes causes nausea, skin rashes, fainting, dehydration, etc. After a month, 7 persons were died, 20 in hospital, and 26,000 treated for symbols of poison. A multinational company dealing in the petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. बच्चों, आप एक उदाहरण के द्वारा देखिए जो आपको मैंने ये चित्र के द्वारा बताया है. एक जहाज में 500 टन तरल जहरीले अवशेष एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए गए. ये अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में अबिदजान शहर में हुआ. इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकले वाले धुएं से लोगों का जी मतलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि की शिकायतें की. 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए, 20 अस्पताल में भर्ती हुए और विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया. पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका